Okay. Last time we did root, stem, leaf. Okay, leaf ka reading was remaining. We'll read it, we'll see the examples, and then we'll move forward. Okay. उसके अलावा I'll send you this notes also. Okay. By the end of today's lecture, I'll send you this notes. यहाँ पर ये वाले नोट्स में सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एक साथ दिए हुए हैं, तो आप ये दोनों नोट्स को कंपेयर करके आप एक मास्टर नोट्स बना सकते हो. ठीक है. ये वाला जो हैंड रिटन है, इसमें सारा एडिशनल पार्ट आ जाएगा आपका. यस. जो बचे कुछ एग्जांपल्स होंगे वो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो. एवरीथिंग इज देयर डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इज देयर इन योर एनसीईआरटी बुक्स. ओके. एडिशनल इसमें कुछ भी नहीं है. ओके. तो यहाँ पर देखो, जैसे लीव का मॉडिफिकेशन है या स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो एग्जांपल्स इस तरह से फ्लो चार्ट वे में दिया हुआ है. ओके. जैसे ये यस, रनर, सक्कर. हाँ सर, तो मतलब दोनों में से लाइक, हाँ, दोनों से मिला के आप मर्ज Competitive. करके यस एक नोट्स बना सकते हो. मोस्टली जो हैंड रिटन वाला है इसमें सब कुछ कवर हो ही जाएगा, बट स्टिल जस्ट गो थ्रू इट वंस so that whatever is remaining you can cover that up. Chalo, we'll start with leaf. The leaf is a lateral general flattened structure borne on the stem. It develops at the nodes and bears a bud on its axil. Axil वाले पार्ट पे, यानी सपोज ये लीफ है, ठीक है. लीफ का एक्सिल मतलब ये पार्ट पे बड होगा. ओके. So leaf will have a bud on its axil that is called as axillary bud, which later develops into branch. फिर यहीं से ये वाला जो पार्ट है वो ब्रांच फॉर्म करेगा. Leaves originate from the shoot apical meristem. Shoot apical meristem मतलब एक पार्ट होता है रूट वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम, दैट इज कॉल्ड द रूट एपेक्स. ये वाले पार्ट को हम कहेंगे शूट एपेक्स. जो पार्ट अबव द ग्राउंड होगा दैट इज कॉल्ड एज शूट पार्ट. अपाइकल मतलब टिप वाला, वहां पर होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू. एंड दे आर अरेंज इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर. एक्रोपीटल का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया? एक्रोपीटल का मतलब होता है, ये रहा देखो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, which means the leaf will grow पहले नीचे फिर उसके ऊपर, इस तरह से. Acropetal is this way. Older leaf at base, younger leaf at top. Please write this down. Older at base, young at top. ये सेम चीज आगे फ्लावर में भी आने वाला है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो. A typical leaf consists of three main parts. The leaf base, which is this part, जिसको हमने पल्वीनस कहा था. Yes, जो swollen part होगा that is the leaf base. Then you have petiole, and then you have the lamina. So this is the first part, this is the second part, petiole, and this is the third part. The leaf is attached to the leaf to the stem by the leaf base and may bear two small leaf-like structures called as stipules. दो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम कहेंगे स्टिप्यूल. अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिपुलेटेड, अगर स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट है तो एक्स स्टिपुलेटेड या नॉन स्टिपुलेटेड. They bear two lateral small leaf-like structures called as stipules. In monocots, the leaf base expands into a sheath covering covering the stem partially or wholly. मोनोकॉट में लीफ एक्सपांड होगा और उसके ऊपर कवरिंग होगा. अब ये कवरिंग या तो पार्शियली होगा या तो होली होगा. बनाना में इट इज कवर्ड एंटायरली, इसलिए बनाना थोड़ा सा वैक्सी दिखता है, द लीफ ऑफ बनाना. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called as pulvinous. Leguminous plant यानी all the dals, all the pulses, they will have pulvinous. Pulses will have pulvinous. Very, very important. Gram, Bengal gram, chana, pea, groundnut, all the dals will have, they are called as leguminous plant and they will have a leaf base called as pulvinous.
The petiole helps hold the blade to the light. Petiole जो है वो लीफ को होल्ड करके रखेगा. Long, thin, flexible petioles allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. लीफ जो है वो फ्लटर करेंगे so that हमेशा नया नया एयर आता जाए. नया एयर आएगा मतलब कूलिंग इफेक्ट होगा. इसीलिए प्लांट्स के नीचे बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन देयर इज कूलिंग इफेक्ट. The lamina or the leaf blade is green expanded part of the leaf which has veins and veinlets. ये लैमिना के ऊपर वेन्स होंगे, वेनलेट्स होंगे. ये मेजर वेन होगा जिसको हम मिडरिप कहते हैं. ये बाकी माइनर वेन्स होंगे. उसके अलावा यहाँ पर वेनलेट्स होंगे. यस. There is usually a middle prominent vein which is known as midrib. Midrib is like the backbone of the leaf. Midrib is like the backbone of the leaf. Veins provide rigidity to the leaf blade. Veins जो है वो rigidity provide करेंगे, strength देंगे, and they act as channels of transport of water, minerals and food materials. तो water transport, mineral transport और food material transport के लिए काम आएगा. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. Shape बोल लो, margin बोल लो, apex, surface सब अलग अलग leaf का अलग अलग होगा. This is called as incised leaf. You can see यहाँ पर leaf पूरी तरह से completed नहीं है. कुछ कुछ जगह पर ऐसे gaps है. जहां जहां गैप है उसको हम कहेंगे इंसिशन. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज वेनेशन. Venation is the arrangement of veins and veinlets in the lamina of the leaf. When the veinlets form a network, the venation is termed as reticulate. Reticulate venation dicots में होता है. ये भी हमने देख लिया है लास्ट लेक्चर. डाइकॉट और मोनोकॉट को हम लीफ से भी पहचान सकते हैं, स्टेम रूट से भी पहचान सकते हैं. When the vein runs parallel to each other within the lamina, the venation is called as parallel. Leaves of dicot plants generally possess reticulate venation. जो डाइकॉट का लीफ होगा वो मैक्सिमम टाइम रेटिकुलेट वेनेशन शो करेगा, while parallel venation is characteristic of monocot. तो रेटिकुलेट इज डाइकॉट, पैरेलल इज मोनोकॉट. क्लियर. यस. लेक्चर चैप्टर के एंड में ना हम डाइकॉट और मोनोकॉट का भी एक डिस्टिंग्विशिंग बना लेंगे कि रूट के हिसाब से क्या है, स्टेम के हिसाब से क्या है, लीफ के हिसाब से क्या है, फ्लावर के हिसाब से क्या है. ओके. सो दैट हम पूरा का पूरा कोई भी एक पार्ट को देखकर हम पहचान सके वेदर द प्लांट इज अ मोनोकॉट और डाइकॉट. क्लियर. यस. ऑल्सो if you remember kingdom plantae में we have learned about gymnosperms that gymnosperms have taproot system. yes. Cycas, Pinus में था ना, they have taproot system. Taproot system dicot और gymnosperm में ही होगा. okay. easy. yes Soumya, can we move forward? Any doubts still here? Types of leaf. A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when the incisions do not touch the midrib. ये जो incision है अगर ये midrib तक आ जाता है about incision, that if the incision does not touch the midrib, जैसे यहाँ पर देखो ये वाले डायग्राम में there is incision. yes, I can see incision here. मगर ये जो incision है वो midrib तक टच नहीं हो रहा है. अगर ये incision midrib तक टच होता तो ये कंपाउंड लीफ होता है ना. जैसे यहाँ पर देखो ये इंसिजन ही होगा जो मिडरिप तक टच हो गया और ये छोटा छोटा लीफलेट बन चुका है या पिन्ना बन चुका है. दिस इज द मिडरिप एंड दिस आर स्मॉल इंसिजन दैट हैव टच्ड माय मिडरिप. अगर इंसिजन है बट मिडरिप को टच नहीं हुआ, इट इज स्टिल अ सिंपल लीफ. इज दिस क्लियर? यस. Yes, sir. A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when the incision do not touch the midrib. When the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking into number of leaflets. अगर वो midrib तक जाता है और वो number of leaflets को cut कर देता है, the leaf is called as compound. Leaf को क्या कहेंगे? Compound. A bud is present at the axil of the petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of leaflets of a compound leaf.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है कोई तो स्टेट की सीईटी में और एम्स में। अ बर्ड इज प्रेजेंट एट द एक्सिस ऑफ पीटियोल, सिंपल और कंपाउंड दोनों में। मगर देखो ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पर आपको बर्ड दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये कंपाउंड लीफ के यस। बेस पे होगा, यहाँ पर भी बर्ड हो सकता है, बट लीफलेट के बेस पे बर्ड नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी बर्ड नहीं आएगा। ऑलवेज That is ऑलवेज given रिमेंबर। another term. क्या? व्हाट टर्म? नहीं मतलब लीफलेट क्या, नहीं मतलब लीफ से निकलेगा। हाँ, लीफलेट मतलब लीफ के बेस से आ सकता है, लीफलेट के बेस से नहीं आएगा। ओके, द axillary bird will come from the base of the leaf but it will never come from the base of the leaflet। ये छोटे छोटे लीफ के, ये लीफलेट के बेस से कभी नहीं आएगा, लीफ के बेस से आ सकता है। ओके, नॉट नेसेसरी हर एक लीफ के बेस पे हो ही, बट लीफलेट के बेस से कभी नहीं होगा। क्लियर? Yes sir. The compound leaves may be of two types: pinnately compound, where a number of leaflets are present on the common axis। पिनेटली कंपाउंड मतलब एक कॉमन एक्सिस होगा जहां पर छोटे छोटे ऐसे लीफलेट्स अटैच होंगे मिडरिप को। ये मिडरिप को हम कहते हैं रैचेस, RACHIS, रैचेस। ओके, विच रिप्रेजेंट द मिडरिप एज इन द केस ऑफ नीम। पाल्मेंटली कंपाउंड में लीफलेट अटैच होंगे कॉमन पॉइंट को। ओके, उसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। देन फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। यस, यहाँ पर तीन टाइप है, ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है और वोल्ड है। हमने चार टाइप किए हैं, ऑपोजिट में दो टाइप किए हैं, एक ऑपोजिट सुपरपोज और एक ऑपोजिट डेक्यूसेट, जहां पर वो 90 डिग्री था ईच अदर। तो अगर सपोज एक नोड पे एक ही चीज आता है तो ये होगा ऑल्टरनेट, अगर एक नोड पे दो आते हैं तो वो होगा ऑपोजिट। ऑपोजिट में भी दो टाइप है, या तो एक के नीचे एक आएगा या तो ऐसे आएगा, एक ये एक्सिस पे, दूसरा ये एक्सिस पे, फिर वापस ये वाले एक्सिस पे, इस तरह से आएगा इन डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस। वोल्ड मतलब एक नोड पे दो से ज्यादा आ सकता है। जैसे एल्स्टोनिया, इसमें चाइना रोज इज नथिंग बट हिबिस्कस एंड गुआवा। एक और एग्जांपल है इसका कैलोट्रोपिस। ओके, कैलोट्रोपिस। The alternate type of phyllotaxy is single leaf arise at each node in alternate manner, as in China rose, mustard and sunflower। In opposite, ये देखो इसका alternate का भी एग्जांपल ऐसे ही लिख दो। कहाँ के alternate? हाँ, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। तो ऑल्टरनेट जहां पर लिखा है उसके ऊपर ब्रैकेट में लिख दो CR, सनफ्लावर, मस्टर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कल कल ही था ना संडे? हाँ, कल नीट का पेपर था, पता है आपको? नीट 2021 हाँ सर। हाँ कितना क्वेश्चन आया पता है मोर्फो से? तो someone तो posted some answer sheet and all, तो मैंने वही देखा था। हाँ, तो 4 क्वेश्चंस आए इससे, और जो पार्ट बोला था वही पार्ट मैंने बोला था ना कि फ्लोरल फॉर्मूला वाला आएगा, चारों के चारों फ्लोरल फॉर्मूला आए, हाँ ओ। एग्जांपल्स डायरेक्ट आए। और ये टाइम का बात नहीं, ये हर साल आता है। So this is one of the most important questions, one of the most important chapters। Okay, so China rose, sunflower and mustard are example of alternate। Opposite में आएगा Calotropis and guava, और अगर more than 2 है they arise from a single whole that is called as Alstonia। Here whole का एक ही example है Alstonia। Hello Ria, can you hear me? Yes, good evening. चलो, modifications of leaf। whatever modifications we have done that was in detail, यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है। Modification of leaf are often modified to perform functions other than photosynthesis। They are converted into tendrils for climbing। देखो stem tendril भी था। Yes, stem tendril था गॉड फैमिली में, बॉटल गॉड, बिटर गॉड, स्नेक गॉड, कद्दू, ये सब में गॉड फैमिली में स्टेम टेंड्रिल था। लीफ टेंड्रिल होता है किसमें? अपना पी में, पी गार्डन पी, फेबिएसी फैमिली में होगा।
और लीफ स्पाइन होगा फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई, ऑल्सो दे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। लीफ स्पाइन का मेन फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको ऐड करना है। द फ्लैशी लीफ ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, ये भी हमने देखा था लास्ट टाइम, राइट? इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकाशिया, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, द पेट्यूल्स एक्सपांड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उसको, फाइलोड या फाइलोक्लैड? फाइलोक्लैड ना, है ना? याद करो, लीफ मॉडिफिकेशन, फाइलोड, फाइलोक्लैड था अपुंशिया वाला, स्टेम मॉडिफिकेशन, याद आया? इसमें दो टाइप थे, फ्लैटेंड के लिए अपुंशिया, सिलेंड्रिकल के लिए यूफोर्बिया, ये फाइलोक्लैड था। फाइलोड होता है अकाशिया में, जहां पर पिट्यूल मॉडिफाई करता है। फाइलोड इज लीफ मॉडिफिकेशन, फाइलोक्लैड इज स्टेम मॉडिफिकेशन। यस, देन कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स के लिए पिक्चर प्लांट है, जिसको हम नेपेंथस कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, वो भी एक मॉडिफिकेशन है लीफ का ही। ओके, दे आर मॉडिफाइड लीव्स ओनली व्हिच हेल्प इन कैचिंग द इंसेक्ट इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इजी, यहां तक हमने लास्ट टाइम किया था सारा का सारा लीफ। अब हम आ रहे हैं इनफ्लोरेसेंस। Yes. टुडे विल डू ओनली अबाउट फ्लावर, और कुछ करने ही नहीं वाले। आज हम 5.4 करने वाले हैं, ठीक है? इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो, 5.4 5.5 मतलब फ्लावर वाला ही पार्ट है ये पूरा। आज हम सिर्फ फ्लावर करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। फ्लावर्स के जितने भी सारे टर्म्स आज सब हम लोग चार्ट के जाएंगे, ठीक है? पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, ये सारा पार्ट आज हम करने वाले हैं। गाइनोशियम, एंडोशियम, एवरीथिंग। ओके, प्लासेंटेशन टिल ईयर, टिल दिस पार्ट वी विल बी डूइंग। आज का लेक्चर ये चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज आज बहुत सारे नाम है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। शायद ये भी पूरा ना हो आज। ओके, ये तो मैं प्लान कर रहा हूँ, है ना, ये तो मेरी इच्छा है। इतना हो या ना हो, आई डोंट नो, ठीक है? जितना होगा हम उतना करेंगे, बट फ्लावर के पार्ट को प्लीज ध्यान से और कान से सुनना। नेक्स्ट क्लास, जैसे ये वीक, पता नहीं ये वीक या नेक्स्ट वीक, जब भी मेरा लेक्चर होगा तब मैं आप दोनों का ओरल पूछूंगा। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर जितना भी करवाया होगा टिल टुडेस लेक्चर, पहले तो उसका नोट्स रेडी कर देना, ठीक है? नोट्स आपके पास दोनों में पीडीएफ भेज दूंगा, एक ऑलरेडी भेज दिया है, मैं ये वाला भी भेज दूंगा जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको वहां पर एग्जाम्पल सारे मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी वाले हैं। इससे आप नोट्स बनाओगे और अच्छे से रीड करके आओगे। मैं आपको ओरल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ओके? ठीक है, कब? नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मॉर्फो का, मेरा जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट लेक्चर इज ओरल लेक्चर। उस दिन शायद मैं जो बचा हुआ पार्ट होगा फ्लावर का वो कराऊंगा और मैं ओरल पूछूंगा, तो ही मैं उसके बाद फ्रूट का स्टार्ट करूंगा। उसके पहले आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अबाउट फ्रूट, ओके? वो लेक्चर में, वो लेक्चर के स्टार्ट में मैं कुछ दूंगा, मतलब सपोज मैं पूछूंगा, मैं आपको आज 20 क्वेश्चंस पूछूंगा, 20 में से सपोज आपने 17 राइट दिए तो आपको कुछ मिलेगा, एंड दैट इज माय प्रॉमिस, ओके? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, मेक श्योर यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मतलब हर एक एग्जाम्पल ऐसे पूरा रट के आना, चाट के आना। ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्प करेगा, ओके? अगर आपने नीट का पेपर नहीं देखा है तो देखो, ये चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे। इनफैक्ट ये चैप्टर से जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन थे वो पूछते हैं। नाउ यू हैव 10 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, राइट? उसमें से 2 क्वेश्चन मॉर्फो के, मतलब उनको भी पता है कि मॉर्फो इतना इजी नहीं है, ओके? एंड ये ऐसा चैप्टर है जो आपको बार बार लगातार रिवाइज करना पड़ेगा। ये एक बार रिवीजन में कभी नहीं होने वाला। मतलब आपने अभी रिवाइज Yes, किया, sir. 2-3 महीने बाद फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, द फर्स्ट रीडिंग इज द मस्ट। If at the first time you are taking maybe 10 days to complete this chapter, it is totally fine. Every time you do it, it will just take 1 day or 2 day for revision. But अगर आप पहले बार अच्छे से टाइम नहीं दोगे तो ये चैप्टर कभी नहीं होगा, ओके?
देर आर थ्री चैप्टर्स इन क्लास 11 जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। उसमें से एक मॉर्फो है, एक फोटोसिंथेसिस है और एक रेस्पिरेशन। ये तीनों चैप्टर्स अगर नहीं आते तो आप भूल जाओ कि आपको नीट में एडमिशन मिलेगा, कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और ये तीनों चैप्टर के लिए बैक टू बैक रिविजन चाहिए। क्लियर? यस, चलो विल स्टार्ट विद इन्फ्लोरेसेंस। एज आई टोल्ड यू बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे, तो पहले नोटबुक, फिर टेक्स्ट बुक, फिर वो एडिशनल वाला नोट्स। ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट। ओके, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है द एंटायर फ्लावरिंग पार्ट। अगर एक सिंगल फ्लावर है तो उसको हम कहते हैं सोलिटरी फ्लावर। जैसे सपोज सन क्या बोलते हैं, शू फ्लावर। शू फ्लावर एक ही फ्लावर होगा, हिबिस्कस का, राइट? वो पूरा ग्रुप ऑफ फ्लावर नहीं है ना। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे वो आपने देखा स्पाइडर लिली, या फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर। सनफ्लावर इज नॉट वन फ्लावर, इट इज द एंटायर ट्री, राइट? उसका हर एक पत्ता, उसका हर एक लीफ इज अ Yes. फ्लावर। सो दैट जब ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा तो उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। या ऑर्किड, ऑर्किड देखा होगा, एक पूरा एक्सिस होता है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स बंच में साथ में ग्रो करते हैं। तो जब इस तरह से ग्रो होगा दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। सिंगल फ्लावर को हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर, ग्रुप फ्लावर को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। अट्रैक्टिव होते हैं एंड दे इंप्रूव द चांस ऑफ पॉलिनेशन। ओके, छोटे छोटे फ्लावर्स अगर ग्रो करेंगे सेपरेटली सेपरेटली तो इंसेक्ट शायद अट्रैक्ट ना हो, बट अगर छोटे छोटे फ्लावर्स साथ में ग्रो कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ब्यूटीफुल दिखेगा, और कोई भी इंसेक्ट या कोई भी बर्ड उसका जो पॉलिनेटर है दैट विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आई रिपीट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। पहला है रेसमोस, दूसरा है साइमोस। दे बोथ आर ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जहां पर आपको दो ऑपोजिट चीजें याद रखनी है, आप सिर्फ एक को अच्छे से पढ़ो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ओके, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस अच्छे से पढ़ेंगे, साइमोस अपने आप हो जाएगा। क्लियर? यस, तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइमोस, सॉरी पहले रेसमोस लिखते हैं, पहले रेसमोस, यहां पर मैं लिखता हूं साइमोस। क्लियर? यस, रेसमोस में होता है, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस हैज इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस, इनडेफिनेट का मतलब क्या होगा? ये हमेशा ग्रो करते रहेगा, इट इज नेवर स्टॉपेबल, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग अगेन एंड अगेन। क्लियर? यस, पेडंकल शोज लिमिटेड, सॉरी पेडंकल शोज कंटिन्यूड ग्रोथ। पेडंकल का मतलब क्या होता है? जैसे फ्लावर, जैसे लीफ के बेस को पेटियोल कहते हैं, वैसे फ्लावर के बेस को हम कहते हैं पेडंकल या पेडिसल। आई रिपीट, जैसे लीफ का जो बेस था ना, स्टॉक, लीफ का डंडी वॉज पिटियोल, राइट? उसी तरह से फ्लावर का भी जो डंडी होगा, दैट फ्लावर का डंडी इज कॉल्ड एज पेडंकल और पेडिसल। क्लियर? यस, इसमें Yes, होगा sir. एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन हमने लीफ में भी पढ़ा है। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है? वेयर एक्रोपिटल सक्सेशन इज वेयर, पहले मैं लिख देता हूं एक्रोपिटल। एक्रोपिटल क्या होता है? एक्रोपिटल मतलब ओल्ड एट बेस। ओल्ड एट बेस, ओल्ड अगर नीचे ग्रो करेगा यानी यंग कैसे ग्रो करेगा? टॉप पे ग्रो करेगा। यस और नो? ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज ये फ्लावरिंग स्टेम है, ठीक है, ओल्ड फ्लावर यहां पर ग्रो करेगा, उससे यंग वाला उसके थोड़ा ऊपर ग्रो करेगा, उससे यंग वाला थोड़ा और ऊपर ग्रो करेगा। यस, दिस इज कॉल्ड एज acropetal सक्सेशन। ओल्ड एट बेस, यंग एट टॉप। यस, इसलिए तो नया नया आता जाएगा, इसलिए तो उसका ग्रोथ अनडेफिनेट है ना। क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट? अनडेफिनेट ग्रोथ, मतलब वो हमेशा ग्रो करता रहेगा, बिकॉज नए नए फ्लावर ऊपर आते जाएंगे तो वो ग्रो करता रहेगा। इजी? यस, ऑर्डर ऑफ ओपनिंग, ऑर्डर ऑफ ओपनिंग देखो, ओल्डर फ्लावर नीचे है, ओल्डर फ्लावर कहाँ है? नीचे, मतलब नीचे वाला पहले खुलेगा,
अगर नीचे वाला पहले खुलता है तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल। क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल। क्लियर? एक्रोपीटल, सेंट्रीपीटल, एक्रोपीटल, सेंट्रीपीटल, एक्रोपीटल, सेंट्रीपीटल। एक्रोपीटल यानी ओल्ड एट बेस, ओल्ड एट बेस यानी सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल यानी नीचे वाला पहले खुलेगा, यंग वाला बाद में खुलेगा। इजी? यस? एनी डाउट्स? एग्जाम्पल है इसका गुलमोहर। एनी डाउट्स? वापस से, your inflorescence is a group of flower. Okay, it is to attract the insects, improve chances of pollination. First is racemose. Racemose is indefinite. Racemose is indefinite यानी it will keep on growing forever and ever. यहाँ पर acropetal succession होगा। acropetal succession यानी old flower as base, old flowers at base, young flowers at the top. ओल्ड नीचे है, यंग ऊपर है, मतलब सेंट्रीपिटल ओपनिंग होगा। सेंट्रीपिटल ओपनिंग मतलब नीचे वाला पहले खुलेगा, ऊपर वाला बाद में खुलेगा। क्लियर? इसका एग्जांपल है गुलमोहर। एनी डाउट्स हियर? पक्का? आगे बढ़े? या सौम्या, एनी डाउट्स? चलो, अभी मैंने क्या बोला था, ये दोनों ऑपोजिट है। तो अगर रेसमोस इनडेफिनेट था तो साइमोस क्या होगा? डेफिनेट होगा, मतलब लिमिटेड होगा। अगर ये अनलिमिटेड था तो ये तो लिमिटेड होगा ना। यस? इसमें था एक्रोपीटल, मतलब ओल्ड बेस पे था। इसमें क्या होगा? ओल्ड टॉप पे होगा, ओल्ड एट टॉप एंड यंग एट बेस। उसको हम कहते हैं बेसिपिटल। क्या कहते हैं? बेसिपिटल। ओके, कैसे दिखेगा बताता हूँ, ये साइड पे ड्रॉ करता हूं मैं। क्या बोला? ओल्ड एट टॉप, मतलब इस तरह से ये फ्लावर है, यंग वाले फ्लावर्स यहाँ आएंगे। अब यंग वाला बेस पे है, ओल्ड वाला टॉप पे है। इस तरीके का जो ओपनिंग होता है उसको हम कहते हैं बेसिपिटल। यस? इजी? ये साइमोस है, रेड वाले के लिए रेसमोस ले लेते हैं। समझ रहा है ना? यस? यस इसका सेंट्रीपीटल ओपनिंग था। सेंट्रीपीटल मतलब वही है, ओल्ड वाला नीचे होगा, और सॉरी, ओल्ड वाला बेस पे होगा, टॉप वाला, यंग वाला टॉप पे होगा। सेंट्रीपीटल का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल होता है ना। ऐसे टाइप की ओपनिंग को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल इज व्हेन द ओल्ड फ्लावर्स ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। अब देखो, अगर प्लांट इस तरह से ग्रो करता है, नया नया तो यहाँ पर आएगा ना। अब नया नया यहाँ पर आएगा तो प्लांट क्या हमेशा ग्रो करते रहेगा क्या फ्लावरिंग टॉप? नहीं ना। तो ये लिमिटेड ग्रोथ हो गया। यस और नो? ये वाले पार्ट में बिकॉज नए नए प्लांट्स जो थे वो ऊपर की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ होगा। इट विल कीप ऑन ग्रोइंग अनडेफिनेटली। यहाँ पर ओल्ड वाला टॉप पर है, तो ये नीचे की तरफ तो नहीं ग्रो करता है ना, तो इसमें डेफिनेट ग्रोथ होगा। क्लियर? यस? वेरी 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 कंफ्यूजिंग, मैं ही कंफ्यूज करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। एक्रोपिटल बेसिपिटल में लीक कर रहा हूँ पेपर, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा। ठीक है, एक अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने रेसमोस एकदम अच्छे से पढ़ लिया था। अभी भी जो मैंने पढ़ा है मुझे याद है, मैंने कभी साइमोस पढ़ा ही नहीं जिंदगी में एग्जाम्पल के अलावा। रेसमोस इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट मतलब नया वाला ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ओल्ड बेस पे होगा, ओल्ड बेस पे नया ऊपर, यानी उसको हम कहते हैं एक्रोपीटल। एक्रोपीटल यानी सेंट्रीपीटल। बस उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट साइमोस। तो जब भी इनडेफिनेट नहीं आया, बेसिपिटल आया, सेंट्रीफ्यूगल आया, तो मुझे पता है वो साइमोस होगा। इजी? यस? पक्का? रेसमोस साइमोस मैंने ऐसा नहीं लिखा है। आई वांट यू गाइस टू राइट इट इन दिस मैनर ओनली व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स। ओके, मैं अभी ये मिटा रहा हूं पूरा। ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे कंपेयर करके। क्लियर? यस?
जब भी ये चैप्टर में एमसीक्यू नहीं थे और नॉर्मल क्वेश्चन पूछते थे, तब ये क्वेश्चन हमेशा पूछते थे, डिफरेंशिएट बिटवीन रेसमोस एंड साइमोस। बहुत बार क्या होता था, बच्चे सब लिखते थे, बट रेसमोस यहाँ चला जाता था, साइमोस यहाँ चला जाता था, पूरा मार्क्स गया, 2 मार्क का क्वेश्चन। ओके, देखो साइमोस इनफ्लोरेसेंस डेफिनेट इनफ्लोरेसेंस लिमिटेड ग्रोथ, बिकॉज बेसिपिटल, बेसिपिटल यानी ओल्ड है वो टॉप पे होगा, यंग जो होगा वो बॉटम पे होगा। पेडंकल शोज डेफिनेट ग्रोथ, पेडंकल मतलब मैंने कहा जो फ्लावरिंग स्टॉक होगा, यस। बेसिपिटल सक्सेशन ओपनिंग इज सेंट्रीफ्यूगल, एग्जांपल जैस्मिन, ठीक है। इसका बुक में देखो क्या एग्जांपल दिया हुआ है, नहीं इसमें बुक में एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, मतलब चेक बुक में दिया है या नहीं दिया है। नहीं दिया है। हम जब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो, ओल्डर फ्लावर्स बॉटम पे, यंग फ्लावर्स टॉप पे, मतलब ये हमेशा ग्रो करता रहेगा, ठीक है। देखो एक और तरीका है जैसे याद रख सकते हैं, रेसमोस एक्रोपीटल, साइमोस बेसिपिटल, RACB याद रखो, ठीक है। ए कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये शेप का होता है ना, ये शेप का, मतलब ओल्ड वन टॉप पे है, यंग वन, सॉरी ओल्ड वन बॉटम पे, यंग वन टॉप पे, इस तरह से याद रखो, जैसे याद रखना है रखो, बगैर रखो। ओके, रेसमोस साइमोस द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पार्ट, ठीक है। आगे बढ़े, यस, शैल आई इरेज दिस? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर। ये देखो मैंने यहाँ पर छोटा छोटा और भी बनाया है, तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। बहुत बार क्वेश्चन में ये डायग्राम देंगे आपको, तो आपको डायग्राम से पहचानना है। देखो ये छोटा छोटा है, मतलब वो यंग होगा, वो बाद में खुला होगा, और ये पहले खुला होगा। जो पहले खुला है मतलब ओल्ड एट बेस, यंग एट टॉप, या मतलब एक्रोपीटल यानी रेसमोस, इस तरह से याद रखना, ठीक है। अब आते हैं फ्लावर पे। टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर, क्या है फ्लावर का फंक्शन? अरे बताओ। Attract करना insects को। प्लांट के लिए या ह्यूमंस के लिए? सर ह्यूमंस के लिए भी फ्लावर कम यूज, या है ना, अट्रैक्शन के लिए यूज तो करते हैं ना बहुत सारे। अच्छा बाय द वे ये वाला पार्ट ना 12th में है कि ह्यूमन लोग कहाँ कहाँ फ्लावर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तभी हम और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट फिलहाल प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फ्लावर क्या है, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। अबे अट्रैक्ट क्यों करना है, क्या जरूरत, क्या अट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है? pollination। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन किसके लिए हो रहा है? व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? पॉलिनेशन किस चीज के लिए हो रहा है? इट इज अ मोड ऑफ, Reproduction, fertilization। एग्जैक्टली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो कटिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, कितने सारे मेथड्स है, बट फ्लावर बनाया है मतलब प्लांट को मांगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर if there is sexual reproduction, which means that plant will definitely have a flower. So flower is basically the modified or the condensed shoot which is specifically made for sexual reproduction. Clear? Yes? Yes, sir. Okay. Flowers, they are highly modified condensed reproductive shoot for sexual reproduction. Okay. दो टाइप के फ्लावर है, मतलब बहुत सारे टाइप के फ्लावर। यहाँ पर देखो बहुत सारे डेफिनेशन है, यू कैन सी, 1 2 3 4 करके सब लिखवाया है, 3 4 देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइप के तो फ्लावर के डेफिनेशन ही है जो अभी हम करेंगे। सब सिंपल है, ठीक है, खाली नाम ऐसे बड़े बड़े दिए तो लगता है बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्ट क्या होता है? देखो जैसे लीफ के एक्सेल पे पता है वो था, स्टिप्यूल था, तो स्टिप्यूल था तो हमने क्या बोला था, स्टिपुलेटेड लीफ। अगर नहीं होगा तो नॉन स्टिपुलेटेड या एक्स स्टिपुलेटेड। उसी तरह से फ्लावर्स के एंड पर भी ना ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट, BRACT, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस। अगर वो ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम कहेंगे इब्रैक्टिएट फ्लावर। इजी? यस।
एनी डाउट्स? पक्का? ओके, लीफ में पिटियोल था, पिटियोल था ना, पिटियोल डंडी था लीफ का जिसके ऊपर आगे लैमिना आता था। वैसे फ्लावर के डंडी को हम क्या कहते हैं? पेडिसेल या पेडंकल, पेडिसेल या पेडंकल। अगर पेडिसेल है तो पेडिसलेटेड लीफ, सॉरी पेडिसलेटेड प्लांट या पेडिसलेटेड फ्लावर। अगर पेडिसलेट नहीं है तो उसको हम कहते हैं नॉन पेडिसलेट या ससाइल। ससाइल हमने यूज किया था लीफ के लिए भी, याद करो। इफ द लीफ हैज petiole it is called petiolated, if it does not have petiole it is called as sessile या नॉन petiolated। पिटियोल जैसा है वैसा ही पेडिसेल है, सेम, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर में 4 मेजर पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशम, गाइनोशम। ये कैलिक्स, करोला, एंडोशम, गाइनोशम में से भी फ्लावर का काम क्या है? रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए मेन क्या होगा? प्राइमरी क्या होगा? एंडोशम, गाइनोशम, यस, यस और नो? तो फ्लावर के 4 वोल्स है, उसमें से जो कैलिक्स और करोला है उसको हम कहते हैं एसेसरी वोल्स, एसेसरी वोल्स। और जो एंडोशम, गाइनोशम है उसको हम कहते हैं एसेंशियल वोल्स, एसेंशियल वोल्स। क्लियर? यस। There are 4 whorls in flower: calyx, corolla, endosham, gynosham. Endosham, gynosham are the main reproductive whorls. That is why they are called as essential whorls. Calyx and corolla, they are supportive whorls. That is why they are called as accessory whorls. Easy? Yes. Yes, sir. Then you have complete flower. Complete flower having all the 4 whorls. जब चारों के चारों whorls present होंगे तो उसको हम कहेंगे complete flower. इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब हैविंग एनी वन वोल मिसिंग। अगर चारों में से कोई भी एक वोल मिसिंग है, सपोज कैलिक्स नहीं है तो भी इनकम्प्लीट, कोरोला नहीं है तो भी इनकम्प्लीट, एंड्रोशम ही नहीं है तो भी इनकम्प्लीट, गाइनोशम नहीं है तो भी इनकम्प्लीट। इजी? Yes. देन परफेक्ट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, तीनों का डेफिनेशन सेम है। अगर दोनों एसेंशियल वोल है, मतलब अगर कोई भी फ्लावर में एंड्रोशम, गाइनोशम दोनों है तो उसको मैं कहता हूं परफेक्ट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। इजी? यस। Yes, sir. अगर दोनों में से सिर्फ एक वोल है, या तो एंड्रोशम है या तो गाइनिशम है, तो उसको मैं कहता हूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इम्परफेक्ट फ्लावर। इजी? यस। मेल फ्लावर या स्टेमनेट फ्लावर कब बोलेंगे? जब सिर्फ एंड्रोशम होगा, गाइनोशम नहीं होगा। तो स्टेमनेट फ्लावर भी एक टाइप का यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही सेक्स होना, यानी अगर मेल है तो स्टेमनेट फ्लावर या मेल फ्लावर, अगर कार्पेल है तो फीमेल फ्लावर या पिस्टुलेट फ्लावर। इजी? यस। एक और टाइप का फ्लावर होता है जो काफी बेकार टाइप का फ्लावर, बेकार मतलब न्यूटर फ्लावर, मतलब ना ही एंड्रोशम है ना ही गाइनिशम है। अब आप सोचोगे सर ये क्या फालतूगिरी है, फ्लावर का मेन फंक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही निकाल दिया। ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों के दोनों एसेंशियल वोल्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटर फ्लावर। इसका एग्जांपल है मैंगो। और सनफ्लावर में भी 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, वो भी एक एग्जांपल है, ठीक है। रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। तो वो जो डिस्क फ्लोरेट है और रे फ्लोरेट है, मतलब सनफ्लावर का हर एक पेटल एक एक फ्लावर है, ओके। और जो सेंटर में जो ब्लैक ब्लैक कलर का होगा वो दूसरे टाइप का फ्लावर है, ओके। दोनों में से एक न्यूटर है, न्यूटर मतलब ना मेल ना फीमेल, कुछ भी नहीं है। मैंगो में भी 2 या 3 टाइप के फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है, ठीक है, या बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मेल फ्लावर होगा, और सेक्सलेस फ्लावर यानी न्यूटर फ्लावर, ठीक है। where both the essential whorls are absent, they are called as neuter flower. Easy? Yes. Monoecious plant मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। एग्जांपल पपाया। यस। ओ सॉरी, मोनोशियस प्लांट मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट बट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ओके। मतलब जैसे मेज है, मेज उसमें मेल फ्लावर अलग पोजीशन पे होता है, फीमेल फ्लावर अलग पोजीशन पे होता है। डायशियस प्लांट मतलब मेल फ्लावर अलग,
मेल प्लांट अलग, फीमेल फ्लावर अलग, फीमेल प्लांट अलग, जैसे जिम्नोस्पर्म में होता है। क्लियर? यस। देन कम्स पॉलीगैमस प्लांट। पॉलीगैमस प्लांट यानी तीनों टाइप का फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, सिर्फ मेल फ्लावर भी होगा, और सेक्सलेस जेंडरलेस फ्लावर यानी न्यूटर फ्लावर भी होगा। एग्जांपल मैंगो। इज दिस क्लियर? इजी? एनी डाउट्स इन Yes, sir. द डेफिनेशन No. पार्ट? एक क्वेश्चन पूछूं? Yes. अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक प्लांट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम है, तो वो प्लांट को, वो फ्लावर को मैं क्या कहूंगा? Distillate flower. पिस्टलेट फ्लावर कहूंगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहूंगा, या इनकम्प्लीट फ्लावर कहूंगा? Incomplete. तीनों कह सकता हूं मैं। इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब कोई भी एक फोल्ड मिसिंग होना चाहिए वहां पर। गाइनोशियम है मतलब एंडोशियम मिसिंग होगा। इम्परफेक्ट फ्लावर मतलब दोनों एसेंशियल, मतलब गाइनोशियम एंडोशियम में से दोनों में से कुछ एक एब्सेंट है, वो एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर भी हो गया। ओके। इम्परफेक्ट भी है वो, और वो फीमेल फ्लावर भी होगा। क्लियर? आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। ओके, इफ a plant has only calyx and corolla, that flower will called as dash। बताओ क्या कहेंगे उसको? Neuter flower or न्यूटर, न्यूटर फ्लावर, incomplete. इनकम्प्लीट फ्लावर, वेरी गुड। एंड इम्परफेक्ट भी तो है ना वो, कुछ भी नहीं है। बट न्यूटर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज उसमें ना ही गाइनिशियम है ना ही एंडोशियम है। में एक होता है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आई Imperfect डिड तो नॉट हियर यू। यूनिसेक्सुअल है। हाँ, Imperfect तो सॉरी सॉरी, यूनिसेक्सुअल होता है ना, इम्परफेक्ट नहीं बोलेंगे, तो सॉरी वो सॉरी, आई नहीं। एम सो सॉरी। वो नहीं होगा। यस, न्यूटर ही बोलेंगे, न्यूटर बोलेंगे, और इनकम्प्लीट बोलेंगे। इजी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्लोरल सिमेट्री। ओके, फ्लोरल सिमेट्री पे आ जाओ पहले। सिमेट्री यानी पता है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल होना चाहिए। Yes. तीन टाइप का फ्लावर होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा किंगडम एनिमेलिया में भी, अगर मैं एक से ज्यादा प्लेन में उसको 1/2 डिवाइड कर सकता हूँ तो वो रेडियल सिमेट्री होगा। जैसे सपोज ये है, इसको मैं ऐसे भी 1/2 कर सकता हूँ, ऐसे भी 1/2 कर सकता हूँ, ऐसे भी 1/2 कर सकता हूँ, ऐसे भी 1/2 कर सकता हूँ। ओके, जब ऐसे टाइप का फ्लावर होगा उसको हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसका सिंबल है ये। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। प्लस साइन और गोल मार्क है। यहाँ पर सेपल्स और पेटल सेम साइज के रहेंगे, सेम शेप के रहेंगे, और दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे कोई भी प्लेन से। एग्जाम्पल मस्टर्ड, दतूरा, चिली, चाइना रोज, सारे एग्जाम्पल्स इक्वली इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। क्लियर? यस। एनी डाउट्स? नेक्स्ट is radial symmetry, sorry, next is bilateral symmetry, जिसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक, जहां पर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा मगर सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस है, जैसे पी प्लांट, गुलमोहर, बीन, काशिया। इसका सिंबल है परसेंटेज। ठीक है, इसके फ्लावर्स भी आपको दिखा देता हूं मैं। गुलमोहर, बीन, कैशिया का फ्लावर देखते हैं, पी का भी देखेंगे। अब ये फ्लावर दिख रहा है आपको? यस, कैन यू सी दिस फ्लावर? अब मुझे बताओ, इसको मैं सिर्फ ऐसे कट करूंगा तो ही वो 1/2 होगा ना? रेड पे रेड दिख भी नहीं रहा है देखो। अगर मैंने उसको ये एक्सिस पे कट किया तो ही वो 1/2 है, राइट? ऐसे कट करूंगा तो 1/2 नहीं हो रहा है ना? यहाँ पर ज्यादा चीज है, यहाँ पर कम चीज है।
तो जब एक ही एक्सिस पे 1/2 होगा तो उसको हम कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक। आई विल ऑल्सो शो यू अबाउट पी फ्लावर, जो आगे भी हम देखने वाले हैं। पी फ्लावर बहुत ही मस्त दिखता है ये। यस, दिस इज अ बेटर इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगेन यू कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू टू एक्सिस ओनली फ्रॉम वन, टू पार्ट्स ओनली फ्रॉम वन एक्सिस। ऐसे 1/2 नहीं होगा, ऐसे भी 1/2 नहीं होगा, सिर्फ यही वर्टिकल प्लेन से वो 1/2 हो सकता है। जब इस तरह का फ्लावर होगा उसको हम कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। क्लियर? यस एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट इज asymmetrical और irregular, cannot be divided into two equal halves। ये अजीब ही टाइप का फ्लावर होता है। ऐसा फ्लावर जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो ही नहीं सकता। एग्जांपल इसका कैना, CANNA। ये कैना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्लांट है, ठीक है, एकदम ग्रास जैसा होता है। ये आपने देखा होगा गार्डन वार्डन में काफी यूज किया जाता है कैना प्लांट। अब इसको आप कहीं से भी डिवाइड करो ये 1/2 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड करो ऐसे, ठीक है, ये एक पेटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन इधर है, यहाँ पर एक बड़ा पत्ता है, यहाँ पर एक छोटा पत्ता है। बहुत ही इरेगुलर शेप का फ्लावर होता है। यहाँ पर देखो, और 2-3 डायग्राम देखते हैं, थोड़ा और बेटर पता चलेगा। यस, सी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एंडोशम गाइनोशम का पोजिशन भी अलग ही होता है। ये देखो, आई कांट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी एक्सिस। जब इस टाइप का प्लांट होगा दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल। आपको लग रहा है सर ऐसे करेंगे तो हो तो रहा है, नहीं, ये पार्ट बहुत ही बड़ा है, ये पार्ट बहुत ही छोटा होता है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, यस। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, flowers can be trimerous, that No, is in sir. multiple of 3, ओके, और tetramerous and pentamerous। मोनोकॉट में ना मल्टीपल ऑफ 3 में होगा। कैलिक्स और करोला पता ना, कैलिक्स आउटर मोस्ट पार्ट, करोला उसके अंदर वाला पार्ट, पेटल वाला पार्ट। अगर वो 3 या 3 के मल्टीपल में है तो उसको हम कहेंगे ट्राइमेरस, और ये प्रॉपर्टी होती है मोनोकॉट की। ट्राइमेरस किसमें होगा? मोनोकॉट। यस। अगर वो टेट्रामेरस है, टेट्रामेरस मतलब 4 का मल्टीपल है या वो 5 का मल्टीपल है, कैलिक्स और कोरोला, तो वो होगा प्रॉपर्टी डाइकॉट का। किसका होगा? डाइकॉट का। इज दिस क्लियर? यस। Yes, sir. तो डाइकॉट मोनोकॉट में हम लोग रूट से पता कर सकते हैं, टैप रूट या फाइब्रस रूट। लीफ से पता कर सकते हैं वेनेशन। अभी मैं फ्लावर से भी पता कर सकता हूँ। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो मोनोकॉट होगा, अगर वो 4 का या 5 का मल्टीपल है तो वो डाइकॉट होगा। इजी। नाउ टेल Yes. मी, अगर एक फ्लावर है जिसके पास 12 पेटल्स है तो वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है? बताओ मुझे। दोनों है। दोनों कैसे हो सकता है? कोई प्लांट से सवा डेढ़ डेढ़ कॉट ऐसा, ना एक ना दो वैसा कैसे पता करेंगे? इफ आई गिव यू अ फ्लावर विच हैज Please start 12 में पेटल्स। आई कांट हियर यू, सॉरी। पैर में होंगे ना? मतलब पैर में। नहीं नहीं, 12 पेयर्स होगा तो भी 24। चलो ना, 24 भी 3 4 दोनों का मल्टीपल है, क्या करें? इफ आई हैव अ फ्लावर विच हैज रूट अराउंड से 12, देखूंगे फिर मैं। रूट से देखो, रूट दिखेगा क्या फ्लावर में? लीफ सर। लीफ से, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर इज आई विल सी द लीफ। मैं सिर्फ फ्लावर से थोड़ी आता है, मेरे को लीफ और रूट से भी तो आता है ना चेक करना कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। यस और नो? यस। इफ, यस सर। आई रिपीट, इफ the number of flower, number of petals, number of sepals are in a multiple of 3, it is of monocot. If it is in a multiple of 4 or 5, it is dicot. Clear? Easy? Any doubts till here? यस सर। पक्का आगे बढ़े? यस। Okay. Let's move to insertion of floral whorls.
अब ये जो 4 फ्लोरल बोलते हैं ना, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ओके, एंड्रोशम, गाइनोशम, ये किस तरह से अटैच है प्लांट में, ये हम चेक करेंगे। उसके 3 टाइप है, हाइपोगाइनी, पेरीगाइनी, एपिगाइनी, ठीक है। हाइपोगाइनी क्या है, पेरीगाइनी क्या है, एपिगाइनी क्या है, तीनों को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब बिलो, राइट, है ना। हाइपो मतलब क्या होगा, नीचे, हाइपोथैलेमस यानी थैलेमस के नीचे, ऐसा ही होता है ना रे, हाइपो। Yes, sir. हाइपोगाइनी का मतलब क्या होगा, गाइनोशम के नीचे, राइट, या गाइनोशम नीचे, क्या होगा उसका मतलब, सोचो जरा। Gynoecium के नीचे. हाँ, वेरी गुड, मतलब गाइनोशम टॉप पे होगा। व्हेन आई से हाइपोगाइनी मतलब गाइनोशम नीचे नहीं है, गाइनोशम के नीचे बाकी लोग हैं। क्लियर, आई रिपीट, व्हेन आई से Yes, sir. हाइपोगाइनी, हाइपो माने बिलो, गाइनी यानी गाइनोशम, हाइपोगाइनी यानी गाइनोशम के नीचे, गाइनोशम के नीचे सारे बाकी सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है। एंड्रोशम भी गाइनोशम के नीचे होगा, कैलिक्स, करोला, सब लोग गाइनोशम के नीचे होंगे। अगर सब लोग गाइनोशम के नीचे मतलब ओवरी टॉप पे है, गाइनोशम टॉप पे है, यस, यस और नो, ओवरी एट टॉप विच मीन स्टेमेन आर बिलो, यानी ऐसे प्लांट को हम कहेंगे सुपीरियर ओवरी, क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी। लेक्चर 1 से हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, लिविंग वर्ल्ड से, फीमेल्स आर ऑलवेज सुपीरियर गैमेट वाइज, राइट। यहाँ पर हमने Mega. फ्लावर को भी सुपीरियर बोल दिया, हाँ वेरी गुड, मेगा, मेगा साइट या मेगा कैरियोसाइट, ओके, या मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो भी है, मेगा मेगा सब फीमेल है। उसी तरह से अगर गाइनोशियम टॉप पर है, ओवरी टॉप पर है, तो वो होगा सुपीरियर ओवरी। अब जरा मुझे बताओ, इसका सिंबल है जी के नीचे अंडरलाइन। अब तुम बोलोगे सर ये क्या फालतू है, नहीं ऊपर अंडरलाइन होना चाहिए ना, गाइनोशियम टॉप पर है तो नीचे क्यों अंडरलाइन किया है। नीचे अंडरलाइन किया है मतलब गाइनोशियम के क्यों ऊपर कुछ नीचे? भी नहीं है। हाँ, गाइनोशियम के ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरा, सुपीरियर है ना, सुपीरियर मतलब टॉप पे किंग है, राइट, या सो कॉल्ड क्वीन है यहाँ पर, Yes. उसके ऊपर कोई नहीं है। जो क्वीन या किंग का थ्रोन होता है उसके ऊपर कुछ होता है या उसके पैर के नीचे गादी होता है, पैर के नीचे होता है ना ऐसा पैर पैर के रखने नीचे. का। हाँ, तो गाइनोशियम सुपीरियर है तो गाइनोशियम के नीचे लाइन देना पड़ेगा, इसको इज्जत देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, उसमें सब में गाइनोशियम ऊपर होगा, उसके बाद सब बाकी सारे फ्लोरल वोल स्टार्ट होंगे। क्लियर, यस। Yes, sir. चलो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करो, उसमें आगे का कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाइपोगाइनी यानी ओवरी एट टॉप, ओके, बाकी सब नीचे होंगे, इसलिए हम गाइनोशियम के नीचे अंडरलाइन करते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बुक के दिए हुए हैं। अगेन जहां जहां एग्जाम्पल होगा बुक में अंडरलाइन करके आप वहां पर उसका वापस एक बार नाम लिख दोगे। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, चाइना रोज इज नथिंग बट हिबिस्कस ओनली, ओके। बता देता हूँ चाइना रोज और हिबिस्कस क्या है। ये है चाइना रोज, ओके, वेरी मच सिमिलर टू हिबिस्कस। ये रोज है, ये चाइना रोज नहीं, ये रोज ही है, ये चाइना रोज है, ओके। दिस काइंड ऑफ अ फ्लावर इज चाइना रोज। कहाँ गया। नेक्स्ट इज पेरीगाइनी, पेरीगाइनी मतलब पेरीफेरी पे होगा गाइनोशियम के, सभी कुछ गाइनोशियम के पेरीफेरी पे होगा, ओवरी एंड स्टेमेन एट द सेम हाइट। तो यहाँ पर आप सुपीरियर ओवरी बोलो या सेमी सुपीरियर ओवरी बोलो चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दो टाइप है, यहाँ पर गाइनोशियम है या यहाँ पर ओवरी है, ठीक है। ओवरी के लेवल पर ही यहाँ पर देखो, उसके नीचे ग्रो किया कौन, कैलिक्स, यहाँ पर ग्रो किया कोरोला, एंडोशियम उसके ऊपर ग्रो किया,
तो ऐसा जब होगा तो हम कहेंगे पेरिगाइनी। यहाँ पर भी सेम, गाइनोशम यहाँ पर है, गाइनोशम के ऊपर एंड्रोशम ग्रो कर रहा है या उसके लेवल पे ग्रो कर रहा है, सेम लेंथ पे। ओके, इसलिए हम इसको कहेंगे पेरिगाइनी। एग्जाम्पल PRP, दैट इज प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, पेरिगाइनी। नेक्स्ट इज एपिगाइनी, एपी माने ऊपर, ओके। गाइनोशम के ऊपर बाकी सब होंगे। यहाँ पर स्टेमेन इज अबाव, ओवरी इज बिलो, और यहाँ पर इसका सिंबल है जी के ऊपर बोझा दे देना, जी के ऊपर अंडरलाइन करना। एग्जाम्पल है गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, जैसे मैंने कहा, ये हर एक पेटल इज वन वन काइंड ऑफ फ्लावर। ठीक है, छोड़ो ना, डायग्राम में दिखा देते डायरेक्ट। सनफ्लावर, रे फ्लोरेट, देखो। ये है सनफ्लावर का फ्लावर, यस। जहां पर ये हर एक पेटल इज रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में देखो क्या क्या है, स्टिग्मा है, कोरोला है, पैपस है, ओवरी है। मतलब यहाँ पर सिर्फ स्टिग्मा है, यानी सिर्फ गाइनोशियम है, यस। यहाँ पर देखो स्टिग्मा एंथर दोनों है, कोरोला, कैलिक्स, ओव्यूल, ओवरी सब कुछ है। मतलब एक कंप्लीट फ्लावर होगा। डिस्क फ्लावर यहाँ पर होता है, ये देखो, ये जो एक एक डॉट डॉट है दैट इज डिस्क फ्लावर, और एक एक जो पेटल है दैट इज द रे फ्लोरा, रे फ्लावर। ये और थोड़ा बेटर इमेज है, क्लियर? यस। Yes, sir. तो जो हम सनफ्लावर का प्लांट देख रहे हैं दैट इज द एंटायर इनफ्लोरेसेंस, वो एक फ्लावर नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर दैट इज ग्रोइंग टुगेदर। इजी? Yes. एपिगाइनी, स्टेमेन बिलो, ओवरी, सॉरी स्टेमेन अबव, ओवरी बिलो, एंड ओवरी इज इंफीरियर, इसलिए जी के ऊपर अंडरलाइन मार्क है। इसका एग्जांपल है गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। फ्लोरल वॉल्स क्या है देखो, सबसे पहले कैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैलिक्स में भी अलग अलग टाइप्स है, अभी हर एक फ्लावर के पार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैलिक्स पढ़ेंगे, कोरोला पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर एंडोशम, गाइनिशम पढ़ेंगे, और तब जाके हमारा फ्लावर वाला पार्ट खत्म होगा। ओके, उसके बाद एस्टिवेशन भी होगा। लेट्स सी कितना होता है आज। ओके, कैलिक्स is the outermost protective green part made up of sepals. I repeat, calyx is the outermost protective green part made up of sepals. If sepals are free, अगर sepals free है तो उसको हम कहेंगे पॉलीसेपैलस। पॉली माने फ्री, सेपलस यानी सेपल्स। कैलिक्स यानी जो ग्रीन पार्ट होगा उसको हम कैलिक्स कहेंगे। अगर वो फ्री है, सब अलग अलग है, तो उसको हम कहेंगे पॉलीसेपैलस। अगर वो फ्यूज है तो उसको हम कहेंगे गैमोसेपैलस। क्या कहेंगे? गैमोसेपैलस। फ्यूज का मतलब होता है गैमो, फ्री का मतलब होगा पॉली। इजी? यस। देन इफ द सेपल्स फॉल ऑफ सून, अगर सेपल्स तुरंत ही गिर जाते हैं उसको हम कहते हैं कॉडेशियस कैलिक्स या कैडोशियस कैलिक्स। इफ सेपल्स फॉल आफ्टर विदरिंग ऑफ पेटल्स दैट इज कॉल्ड एज डेसिडियस कैलिक्स। अगर पेटल्स के गिरने के बाद हमारा सेपल गिरने वाला है तो उसको हम कहेंगे डेसिडियस कैलिक्स। देन इफ सेपल्स रिमेन आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट बनने के बाद भी, फ्रूट कौन बनता है? ओवरी फ्रूट बनता है, राइट? ओव्यूल्स बनते हैं सीड, Yes. ओवरी बनता है फ्रूट। तो ओवरी के फ्रूट बनने के बाद भी अगर कैलिक्स होगा उसको हम कहेंगे परसिस्टेंट कैलिक्स। क्या आप एग्जांपल दे सकते हो ऐसे फ्रूट्स का जिसमें कैलिक्स अभी भी प्रेजेंट है फ्रूट बनने के बाद भी? ब्रिंजल देखा है? ब्रिंजल, ब्रिंजल का जो क्राउन होता है, क्राउन दैट इज नथिंग बट द कैलिक्स पार्ट। Yes. Yes. ऐसा और किस में होता है? टोमेटो, यस। टमाटर में भी Yes. कुछ टोमेटो के पास ऐसा टोपी होगा, दैट टोपी इज नथिंग बट दैट कैलिक्स ओनली ना। और कोई वेजिटेबल या ऐसा कोई फ्रूट है जिसमें कैलिक्स है?
बताओ। Pumpkins, maybe. पंपकिन, ओके पंपकिन, उसमें स्टॉक होगा ना। हाँ बट यस यू कैन से उसमें भी एक बड़ा पंपकिन बाय द इज द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस ना, वो भी पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है जो हम कंज्यूम करते हैं, वो एक फ्रूट नहीं है, वो ग्रुप ऑफ फ्रूट है जो साथ में आता है पूरा। यस चलो, तो आप अभी जीवन में परसिस्टेंट कैलिक्स पहचान सकते हो। ओके, अगेन ऑल दिस पार्ट्स आर नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, दीज आर एडिशनल पार्ट्स। कोरोला दैट इज द सेकंड गोल, ठीक है, जो लॉन्गर होता है, कलर्ड होता है, सेंटेड होता है, अट्रैक्शन के लिए यूज होता है। इसमें भी सेम, अगर फ्री है तो पॉलीपेटालस, अगर फ्यूज है तो गैमोपेटालस। यस क्लियर, if it is free polypetalous, if it is fused it is gamopetalous। कैलिक्स बनता है सेपल से, आई रिपीट कैलिक्स बनता है सेपल से, कोरोला बनता है पेटल से। कोरोला किससे बनेगा? पेटल से। क्लियर? यस। कभी कभी Yes. कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होगा, कैलिक्स और कोरोला फ्यूज होता है, एकदम चिपका हुआ होता है, तो मैं कैलिक्स को और कोरोला को सेपरेट नहीं कर सकता हूं। जब इस तरह से कोई भी फ्लावर होगा उसको हम कहते हैं पेरियन। क्या कहते हैं? पेरियन। ठीक है, PERINTH, पेरियन। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल, कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल, तो पेरियन किससे बनेगा? टेपल से। ठीक है, टेपल, सेपल कैलिक्स का, कोरोला का पेटल, पेरियंस का टेपल। पेरियंस क्या है? when calyx and corolla are not distinct, which means they are fused, it is called as perianth. Is this clear? Yes. And perianth is made up of Yes. tepal। टेपल अगर फ्री है तो उसको मैं कहूंगा पॉलीफाइलस, अगर पेटल सॉरी अगर टेपल फ्यूज है तो उसको मैं कहूंगा गैमोफाइलस। अगेन पॉली का मतलब फ्री, गैमो का मतलब फ्यूज। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? पक्का? रिया, सौम्या? No, sir, no doubts. I'll repeat once again, calyx outermost part, individual units are called as sepals। अगर sepals free है तो वो होगा पॉलीसेपेलस, अगर वो फ्यूज है तो वो होगा गैमेसेपेलस। नेक्स्ट इज कोरोला। कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल, इफ पेटल्स आर फ्री पॉलीपेटलस, इफ पेटल्स आर फ्यूज गैमोपेटलस। इजी। इफ कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज, they are not distinct, it is called as perianth। perianth is made up of tepals, अगर टेपल्स फ्री है तो पॉलीफाइलस या पॉलीटेपेलस भी बोल सकते हैं। अगर सेपल्स फ्यूज है तो उसको हम कहेंगे गैमोफाइलस या गैमोटेपेलस। इज दिस क्लियर? पक्का? यस। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन अगेन याद है मैंने कहा था ये चैप्टर में 2 या 3 अरेंजमेंट है। पहला अरेंजमेंट हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ लीफ, फाइलोटैक्सी जिसको हम कहते हैं। देन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, कि वेन्स और वेनलेट्स से रेटिकुलेट पैरेलल वैसा। फिर हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इनफ्लोरेसेंस, रेसमोसाइमोस। ये फोर्थ वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने पहले वाले 3 थे। ओके, एस्टिवेशन क्या होता है, किस तरह से कैलिक्स और कोरोला अरेंज है, उनका पैटर्न क्या है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न 4 टाइप है। उसके लिए मैं ये वाला डायग्राम यूज करता हूँ, इसने थोड़ा सा छोटा बनाया डायग्राम, तो बड़े वाले डायग्राम में जरा हम देखते हैं। ये देखो, अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ फ्लावर में ऐसा होगा कैलिक्स एक टाइप का अरेंजमेंट दिखाएगा, कोरोला अलग टाइप का अरेंजमेंट दिखाएगा, दैट इज टोटली ओके, चलेगा। डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। और ना मतलब सेपल्स का अरेंजमेंट अलग हो सकता है, पेटल्स का अरेंजमेंट अलग हो सकता है। यूजुअली दोनों का अरेंजमेंट सेम ही होता है बट अलग अलग भी हो सकता है। अगर इफ द सेपल्स और पेटल्स दे डू नॉट touch each other, that is called as
वेलवेट, क्या कहेंगे? वेलवेट। देखो यहाँ पर कैसे ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, दोनों सब लोग एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं ना, सब लोग ऐसे अलग अलग है, तो ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को हम कहेंगे वेलवेट। ओके, इफ दे ओवरलैप ईच अदर, देखो जैसे ये है, जैसे चाइना रोज में होता है, ठीक है, एक अंदर होगा एक कंप्लीटली बाहर होगा, उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड। ये क्या कहते हैं? ट्विस्टेड। एक और नाम है इसका कॉन्टोर्टेड। कॉन्टोर्टेड, क्लियर? अगर दे आर जस्ट टचिंग ईच Yes, अदर sir. दैट इज वेलवेट, अगर एक पार्ट अंदर है एक पार्ट बाहर है दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट, देखो जरा इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट का डेफिनेशन क्या होगा? ये रहा इम्ब्रिकेट बाय द वे, सी वाला, ये भी ट्विस्टेड जैसा ही है ना, बट क्या डिफरेंस है देखो, एक पूरा अंदर है एक पूरा बाहर है, यस, है ना? Yes. एक पेटल या एक सेपल पूरी तरीके से अंदर होगा एक पूरी तरीके से बाहर होगा, जब इस तरीके का अरेंजमेंट होगा हम कहेंगे इम्ब्रिकेट। क्या कहेंगे? इम्ब्रिकेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम के साथ साथ आपको नीचे वाले डायग्राम से भी पहचानना आना चाहिए। देखो यहाँ पर टच नहीं हो रहा है मतलब ये वेलवेट होगा, यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग हो रहा है मतलब ये ट्विस्टेड होगा, यहाँ पर देखो एक पूरा अंदर है ये वाला पूरा बाहर है, तो ये क्या होगा? इम्ब्रिकेट। इजी। लास्ट वाला सबसे इजी है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी क्या होता है? सब अलग अलग टाइप के होते हैं, इसको हम कहते हैं पैपिलोनेशियस। पैपिलोनेशियस का मतलब होता है बटरफ्लाई शेप। ये होता है पी में और बीन में। पी फ्लावर और बीन फ्लावर, हमने दोनों फ्लावर का फोटो देखा था। इसमें 5 टाइप के पेटल होते हैं। ये जो बड़ा पेटल है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद ये होंगे विंग्स। ओके, और ये वाला पार्ट होगा कील। कील का ही दूसरा नाम है करीना। करीना, कपूर वाला नहीं, दूसरा करीना। क्लियर? यहां पर सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने, कहा गया रे? हाँ, वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस धतूरा। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है कैशिया, गुलमोहर। वैक्सलरी का एग्जाम्पल है पी और बीन। ये स्टैंडर्ड, विंग, कील, कील का ही दूसरा नाम है करीना, CARINA। क्लियर? ऑल्सो कॉल्ड एज बटरफ्लाई शेप, बोट शेप। एक स्टैंडर्ड होगा, 2 विंग होंगे और 2 फोल्डेड कील या करीना होंगे। तो आपको दोनों डायग्राम से पहचानना आना चाहिए, ये डायग्राम से भी ये डायग्राम से भी। और ये जो वैक्सलरी एस्टिवेशन है ये स्पेसिफिकली पैपिलोनेशियस फ्लावर यानी पी फ्लावर हो गया, बीन हो गया, ये सब में ही होगा और किसी और दूसरे में नहीं मिलता है, तो ये स्पेसिफिक है थोड़ा सा। क्लियर? चलो एंड्रोशम वाले और गायनेशम वाले पार्ट पे आते हैं। ओके, और लेट्स डू वन थिंग, एंड्रोशम गायनेशम इससे कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? एंड्रोशम, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव वॉल विथ 1 और मोर स्टेमेंस। एक से ज्यादा स्टेमन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल यानी मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर होंगे माइक्रोस्पोर यानी पोलन्स। ओके, अगर बहुत सारे स्टेमन है फ्री है तो पॉलीएंड्रस। अगर वो फ्यूज है तो उसको हम कहते हैं अडल्फस। क्या कहेंगे? अडल्फस। ओके, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, स्टेमन्स यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल, इट इज कॉल्ड एज मोनोअडल्फस। अगर 2 बंडल है तो डायअडल्फस, अगर बहुत सारे हो तो पॉलीअडल्फस। ठीक है? अगर वो पेटल्स को कनेक्टेड है, आई रिपीट, अगर वो पेटल्स को कनेक्टेड है तो उसको हम कहेंगे एपीपेटैलस। कभी कभी क्या होता है, एंड्रोसम जो है वो पेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है, अगर वो पेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे एपीपेटैलस। किसमें जुड़ा हुआ होगा उसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में। अगर वो पेरियन से जुड़ा हुआ है, पेरियन से जुड़ा हुआ है मतलब पेरियन क्या था? कैलिक्स और करोला कंबाइंड। इफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोसम इज कंबाइंड इट इज कॉल्ड एज एपीफाइलस।
या एपिटेपेलस? क्लियर? Yes, sir. आज बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं बच्चा, हर एक टर्म को अच्छे से रीड करना आज के आज ही या कल तक, तो ही ये घुसेगा, वरना सब उड़ जाएगा। इट इज ऑल वॉलेटाइल, सैनिटाइजर जैसा है ये टॉपिक। जब लगाते हो तब मस्त लगता है, Okay. फिर 2 मिनट बाद लगता है अरे सब नया नया है। ओके, प्लीज रीड करना, ठीक है। 2 bundles diadelphous, example pea plant. More than 2 polyadelphous, example citrus. There may be a variation in length of filaments within the flower, example salvia and mustard. कभी कभी क्या होता है, फिलामेंट का लेंथ अलग अलग हो सकता है, तो एक ही एंड्रोशम में एक फिलामेंट बड़ा होगा, एक फिलामेंट छोटा होगा। इसका एग्जांपल है सेल्विया और मस्टर्ड। ओके, देन कम्स गाइनिशियम। गाइनिशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कार्पेल या पिस्टल कहते हैं। यस, एक या ज्यादा कार्पल हो सकते हैं। कार्पल होता है मेगास्पोरोफिल पे, मेगास्पोरोफिल के अंदर होगा मेगास्पोर्स। अगर ये साथ में है, इफ दे आर फ्यूज, दैट इज कॉल्ड एज सिनकार्पस। देखो, कार्पल में और एंड्रोशम, मतलब एंड्रोशम गाइनोशम में पॉली और गैमो नहीं आएगा। गैमो वाला और पॉली वाला टर्म सिर्फ कैलिक्स कोरोला के लिए है, इनके लिए टर्म्स अलग है। सिनकार्पस विच मींस कार्पल्स आर फ्यूज्ड। सिन मतलब सिंथेसिस, फॉर्म होना, साथ में आना। अगर कार्पल फ्यूज्ड है तो उसको हम कहेंगे सिनकार्पस। एग्जांपल मस्टर्ड टोमेटो। अगेन सिनकार्पस जहां पर बुक में लिखा है अंडरलाइन करके मस्टर्ड टोमेटो लिख दो, ऑल्दो बाजू में लिखा होगा तुम वापस लिखो। अगर कार्पल्स फ्री है, मतलब कार्पल में क्या क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, अगर ये अलग अलग है एक ही फ्लावर में और फ्री है तो उसको हम कहेंगे एपोकार्पस। इट विल बी कॉल्ड एज एपोकार्पस। इजी? Yes, sir. सिनकार्पस, मस्टर्ड टोमेटो, एपोकार्पस, लोटस एंड रोज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बनेगा सीड, ओवरी बनेगा फ्रूट। ओके, ईच कार्पल हैज 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये तो पता है, ठीक है। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट, स्टाइल पतला सा पार्ट, ओवरी बेस। ओव्यूल्स होगा ओवरी के अंदर। दे आर प्रोड्यूस ऑन अ सॉफ्ट फर्टाइल टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। सॉफ्ट फर्टाइल टिश्यू पे होगा जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा का भी अरेंजमेंट है, उसको हम कहते हैं प्लासेंटेशन। लेट्स कम हियर अगेन, वंस अगेन टेक्स्ट बुक में आ जाओ। ये रहा प्लासेंटेशन। यहाँ पर बहुत ही अच्छा चीज लिखा हुआ है, यहाँ पर ABCD करके लिखा हुआ है, ABCDE। मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, बहुत सारा जगह है। ये ई क्या है, बेसल, तो यहाँ पर बेसल लिखोगे और बेसल का एग्जांपल यहीं पर लिखोगे। फ्री सेंट्रल क्या है, फ्री सेंट्रल का एग्जांपल भी यहीं पर लिखोगे। पैराइटल का एग्जांपल क्या है, यहीं पर लिखोगे। एक्साइल का क्या है, यहीं पर लिखोगे। मार्जिनल का क्या है, वो यहीं पर लिखोगे। इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में यहीं पर जहां पर स्पेस है सब एग्जांपल भर दो। ए क्या है, ए इज मार्जिनल, तो मार्जिनल लिखोगे और उसके एग्जांपल लिखोगे। इज दिस क्लियर? यस? Yes. ओके, अब वो एग्जांपल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्लीज आप ये डायग्राम साइड में रखो, मैं भी साइमल्टेनियसली पढ़ाता जाता हूँ, डोंट वरी। मार्जिनल ओव्यूल इज फ्यूज्ड ऑन मार्जिन ऑफ ओवरी, एग्जांपल पी। जो ओव्यूल होगा वो मार्जिन पे होगा ओवरी के। आई रिपीट, जो ओव्यूल होगा वो ओवरी के मार्जिन पे होगा। एग्जांपल होगा पी प्लांट में। देखो जरा यहाँ पर मार्जिन पे है, हाँ बिल्कुल मार्जिन पे है ना? यस। देन एक्साइल, यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस होगा। एग्जांपल चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। लेमन को कट किया आपने कभी? लेमन को या ऑरेंज को कट किया तो पता है ऐसे लाइंस दिखते हैं और सेंटर में सीड्स होते हैं, Yes. तो वो है क्या, फ्री सेंट्रल। बी फ्री सेंट्रल ही है ना, सॉरी एक्साइल, सॉरी Exile. सॉरी एक्साइल, एक्साइल, सो सॉरी सो सॉरी। फ्री सेंट्रल में लाइन नहीं होगा, फ्री सेंट्रल और एक्साइल में यही डिफरेंस है। एक्साइल विल हैव लाइन, फ्री सेंट्रल विल नॉट हैव लाइन। देन कम्स पैराइटल, जहां पर इनर वॉल ऑफ ओवरी पे होगा। एग्जांपल मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। देखो साइड में, ऐसा किसमें होता है कि साइड में सीड्स होते हैं? ऐसा कोई फ्रूट खाया है तुमने? बताओ।
मैं बताऊंगा, बोलगा अच्छा हाँ ये भी तो था, है ना। बताता हूँ, देखो, पैराइटल प्लासेंटेशन, ये खाया है कभी? क्या है ये? सर इट्स अ मेरा वेजिटेबल। कुकम्बर है, ककड़ी है, ककड़ी, अच्छा, वही है ना। मेरे को लगा वो परवल की सब्जी। हाँ वो भी, उसमें भी सेम है, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। ठीक है, ये देखो, टमाटो में भी साइड में होगा। यस, आई टोल्ड यू ना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप थोड़े सब्जियों को थोड़ा अलग नजरिए से देखने लगोगे। ओके, so this is parietal, then you have free central। फ्री सेंट्रल में सेंट्रल एक्सिस पे होगा, एग्जांपल डायंथस एंड प्राइमरोज, इसका भी देखते हैं, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। द पॉइंट इज, जो वेजिटेबल्स हम खाते तो उनका हमको ज्यादा पता होता है। अब प्राइमरोज का कोई नहीं देखने गया है ना, उसका कैसा दिखता है ओवरी, ये देखते हैं। अपने मतलब का कुछ है इधर। फ्री सेंट्रल, नॉट फाइंडिंग एनीथिंग राइट नाउ। फ्री सेंट्रल का यहाँ पर डायग्राम दे रहे हैं लोग, एग्जाम्पल जो हमने खाया हो। ये कीवी, कीवी कीवी कीवी, कीवी इज फ्री सेंट्रल ओनली ना, यस है ना। कीवी कैसे भूल गए रे? अच्छा हाँ कि कीवी इज फ्री सेंट्रल। चलो एक तो मिला इतना ढूंढने के बाद। नेक्स्ट, बेसल। बेसल इज ऑल द बीन, मेरी गोल्ड, सनफ्लावर, इसमें बेसल होगा। बेसल का डायग्राम भी देखो, ये वाला किस तरह से होगा, वो बेसल होगा। मेक श्योर यू राइट ऑल द एग्जांपल्स हियर एंड हियर इटसेल्फ। ओके, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड इज द एग्जांपल ऑफ बेसल प्लासेंटेशन। आज हमने फ्लावर वाला पार्ट किया। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर, सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक रीड करूंगा। ओके, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, अगर वो क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे जब तक, तब तक हम लोग फ्रूट और सीड वाला पार्ट नहीं करने वाले। तो नेक्स्ट क्लास is the revision of today's lecture along with all the lectures that have been done earlier. Make sure next lecture तक at least लीव तक के नोट्स आपके रेडी हो जाने चाहिए। फ्लावर तक के नहीं होंगे चलेंगे, एटलीस्ट लीव तक के नोट्स रेडी हो जाने चाहिए। अगर फ्लावर तक के भी हो जाए तो दैट इज वेल एंड गुड। ओके, उसके अलावा वॉट एवर नोट्स हैव बीन पेंडिंग, मेक श्योर यू राइट इट डाउन, यू हैव टाइम। ओके, आप थोड़ा सा स्पेस आउट करो, डेली 1 आवर 1.5 आवर करोगे, आपका निकल जाएगा पूरा एक 2 हफ्ते में बैकलॉग। क्लियर? यस चलो बाय। बाय बाय सर। सर।